Hello, 90s. After a request from class 9th students, so we are actually doing some work for them. Let's do chapter 3, coordinate geometry of class 9th. I think this is comparatively much easier chapter, and it hardly takes a couple of lectures to excel the chapter. We will discuss some important components or the question of this chapter, in which I would like to try the most needed concept for examination point of view. So be very attentive. Let's start the lecture now. Firstly, we will discuss x-axis. You know what is x-axis? X-axis is the horizontal axis. Let me draw horizontal axis, this thing. This is called x-axis. This is horizontal, this is sleeping line. Now the vertical axis is called y-axis. This is our y-axis. Vertical means standing axis. Now where the two axes cross each other, this point is called origin O. एंड ओरिजिन जो आपका होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 0. This xy axis is called xy plane or 2D plane. Now this xy plane will divide the plane in 4 quadrant. As you can see in the picture as well, this is the first quadrant, and now we will move anti-clockwise, then the second quadrant, and then the third quadrant, and the last one is the fourth quadrant. Any point in the xy plane is written in the ordered pair. Coordinate of x is called abscissa and coordinate of y is called ordinate. Okay, so coordinate of x, इसको हम बोलेंगे abscissa, and coordinate of y is called ordinate. And any of the point in this plane is represented with this ordered pair, in which firstly we will write x coordinate and then we will write y coordinate. So x, y, ordered pair. Always remember, the position of the point in x-axis is represented first at point x, and then position of point in y with respect to y is called ordinate. एक्स वाई इसको आप चेंज नहीं करेंगे. जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वहां पे आपके जो पॉइंट्स होते हैं, दोज आर ऑलवेज प्लस प्लस. मतलब एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एज यू कैन सी, एक्स एक्सिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो इट विल बी माइनस and y is positive, minus plus. Then move on to the third quadrant. Here both x and y are minus and minus, because x axis is also representing negative, this, and y axis is also representing this. So this x negative and this y negative, therefore this quadrant is minus minus. And the fourth quadrant, here the x-axis is representing positive and y-axis is representing negative. So this is plus minus. Basically abscissa is positive and ordinate is negative. So this is the basic thing we will require to solve the question. So let's start with the question part, and I request you to participate. You can write your answer in your answer sheet and submit for the checking as well. Wow, it's Naruto. So let's do our first question based on your favorite anime, Naruto. So Naruto is wandering in a jungle to have some fun, and at some particular position, at some particular time, he is at position A. Okay, position A. पोजीशन ए कैसे मेंशन की गई है? क्रॉस सेक्शन ऑफ टू एक्सिस. अब आपने अभी अभी हमारे साथ पढ़ा, टू एक्सिस कौन सी हैं? एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. एंड नारुतो इज स्टैंडिंग एट, सिटिंग एट क्रॉस सेक्शन ऑफ टू एक्सिस. तो देखो वो यहाँ पे बैठा हुआ है. याद आया क्या था ये वाला पॉइंट? या दिस इज ओरिजिन. सो दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड ओरिजिन. यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ओरिजिन. And origin के coordinates क्या होते हैं? We have also discussed coordinate. So let's write this point as A and its coordinates are 0, 0. Then second question में ये बोल रहा है, he moved 7 units to the west and reached position B.
अभी देखो वो यहाँ पे बैठा हुआ है और 7 यूनिट्स टू दी वेस्ट अगर जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो 7th पोजीशन पे वो पहुंचा, 7th दिस थिंग, दिस इज इट्स पोजीशन बी। इट इज आस्किंग व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका एब्सीसा जो होता है वो यूनिट शो करेगा। तो उसने 7 यूनिट मूव किया वेस्ट में, तो वेस्ट साइड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस था ना, तो ये मेरा हो जाएगा -7। और अब ऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो इट्स ऑर्डिनेट विल बी 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विल बी -7 एंड 0। क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमारा बी आंसर क्या आ गया, -7 एंड 0। देन इट इज सेइंग एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम पॉइंट ए। तो फ्रॉम पॉइंट ए इट इज एट 7 यूनिट्स, क्योंकि 7 स्टेप्स उसने मूव किए थे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो डिस्टेंस विल बी 7 यूनिट्स। नाउ द लास्ट एंड थर्ड पार्ट, व्हेन the Naruto is at point B, he saw his friend Sasuke at 5 units in the downward direction। अब ध्यान से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें जाना है। अभी वो पोजीशन बी पे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव वाई। तो 1 2 3 4 एंड 5, -5 और 7 का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर जब वो आया है, इसने पूछा व्हाट इज द एब्सीसा ऑफ सी। तो एब्सीसा हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज -7, एंड इफ वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट बेसिकली बोथ द पॉइंट्स, देन इट विल बी -7, 5। So the answer for the abscissa of point C is -7. I hope you enjoyed this question. Basically we discussed the position according to the movement. Let's move on to the next question. हर क्वेश्चन में वी विल ट्राई टू मेक एक्सेस। अगर एक्सेस मैं नहीं बनाऊंगी, यू हैव टू मेक द एक्सेस इन योर ओन कॉपी, एंड प्लीज बी वेरी अटेंटिव। आई वुड लाइक यू टू आंसर अहेड ऑफ मी। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इट इज हैविंग टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट इट इज सेइंग इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 0 -4, देन ऑन विच एक्सेस विल इट लाई। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे एक्सेस बना दी है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। प्लीज वर्टिकल बनाइएगा, स्लैंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसने बोला पॉइंट ए जो है वो 0 और -4, तो 0 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सीसा 0 है, एंड -4 मतलब पोजीशन एट वाई एक्सिस। सो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट जो मेरा होगा ये 0 और -4 रिप्रेजेंट करेगा। तो always remember when abscissa is 0, then always that point will lie on the y-axis. Okay, I hope this clears the point. So answer of the fourth question, first part is y-axis. अब सेकेंड पार्ट में उसका रिवर्स है, बी कोऑर्डिनेट, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स उसने 30 बोले हैं। 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मतलब एब्सीसा, तो 1 2 3, तो बी पॉइंट जो आ रहा है मेरा वो 3, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। आई होप दिस क्लियर्स योर पॉइंट। Abscissa 0 मतलब y axis, ordinate 0 मतलब x axis is the position. Now move on to the next question. It is saying if the coordinates of a point C are -3 and 4, then it lies in the second quadrant और fourth quadrant. अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक्सिस बना के सिर्फ हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन, माइनस प्लस, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था यहाँ पे हमारा प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव चला गया ना, तो माइनस और प्लस होता है। अभी जो मेरे को पॉइंट दिए हुए हैं दीज आर -3 4, तो अगर आप -3 4 को प्लॉट करोगे तो इट विल लाई इन दी, बताओ, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आवर आंसर विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट। Now the next question, it says on plotting P -3 8 Q 7 -5 R -3 -8 and T -7 9. So we are given with 4 points P Q R T. ये बोल रहा है we plot these points on the graph paper. Then write the points which are in the third quadrant. अभी third quadrant का significance याद है? थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस हो जाता है, वाई प्लस हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस हो जाएंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो प्लस रहेगा, वाई माइनस होगा। सो आई गेव द पोजीशन
at different coordinates according to the axis. So x axis नेगेटिव जा रही है ना, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, x axis सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. सो अभी मुझे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. सो दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट वेयर बोथ दी पॉइंट्स आर नेगेटिव. अगर आप ध्यान से देखोगे P नो, Q नो, R यस, -3 -8. तो R जो मेरा पॉइंट है दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज इट हैज बोथ abscissa negative, ordinate negative. So the only point which lies in the third quadrant will be R. Always remember these sign will help us to identify the position of point at different quadrants. Next question. It is saying from the given figure, हमें ये जो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम 2D प्लेन भी बोल रहे हैं. यहाँ पे ना मुझे कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. देखो लेट्स फाइंड दीज पॉइंट्स आर. देखो यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एक एम पॉइंट भी है, जी पॉइंट भी है, एच पॉइंट भी है. अब इसने इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं. पेपर में क्या होगा, या तो मुझे पॉइंट प्लॉट करना आएगा या फिर मुझे पॉइंट दिया होगा, मुझे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कुछ भी आएगा सिमिलर टोन पे चलेगा. तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन फिगर को ध्यान रखते हुए काम करना है. इसने बोला वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. अभी मुझे जो ये पॉइंट बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगी तो क्या होंगे. देखो ये पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव. तो एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी 2 और y की वैल्यू ऑर्डिनेट. देखो यहाँ पे आपको ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ऑन दी एक्सिस, these helps us to locate the position of that point easily. तो b कोऑर्डिनेट जो आ रहा है ना, इसके पॉइंट्स मेरे पास हो जाएंगे, b कोऑर्डिनेट के पॉइंट 2, 3. अब इसने मुझसे क्या पूछा इसके अंदर, व्हाट इज दी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b. तो y कोऑर्डिनेट का मतलब है क्या, ऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मेरा जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिले हैं 2, 3. तो 3 ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. उसके बाद सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो अब याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है. यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन कर लेते हैं, आप लोग इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो मुझे मिल रहा है दैट इज ऑर्डिनेट. अभी आप मुझे बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो चलो फाइंड कर लेते हैं. तो हम लोग पॉइंट ए को आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है. इसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है ना. यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस लेके आओ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस. तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट्स. ओके, सो मेरा आंसर हो जाएगा 3 यूनिट्स. हमें क्या ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ऑर्डिनेट विच इज 3 यूनिट हेयर. चलो जी, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट जी. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था ना एब्सिसा. एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो पॉइंट हमारा पहले आ जाता है. तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट जी, हाँ जी पॉइंट जी फाइंड किया. कौन बच्चा मुझे बताने वाला है पॉइंट जी किस क्वाड्रेंट में है. वाओ, इट इज इन क्वाड्रेंट 4. अब क्वाड्रेंट 4 के पॉइंट्स का जो साइंस का कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव जा रही है, वाई एक्सिस नेगेटिव जा रही है, तो इट इज प्लस माइनस. मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एब्सिसा में इंटरेस्ट है. बट अगर आप पॉइंट जज करते हो तो इट विल हेल्प यू टू जस्ट ग्रास्प द टॉपिक. तो एब्सिसा पूछ रहे हैं ना, अब पॉइंट जी जो है उसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे. पहले एक्स एक्सिस एब्सिसा देख लेते हैं विच इज 2. देखो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन में लाओगे तो दिस इज 2. अब इसका ऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं. अगेन दिस इज 2 विथ माइनस साइन, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना. तो अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है एब्सिसा. तो आपका एब्सिसा ऑफ जी इज 2. आंसर आपका हो जाएगा एब्सिसा ऑफ जी इज 2. वेरी गुड. Now we can move on to the fourth part. Name the quadrant in which point B and G lies. Okay, हमें यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं पूछे गए, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछा गया. आई थिंक कोऑर्डिनेट तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना आपके लिए. तो पॉइंट B
हमने डिस्कस किया था ना पॉइंट भी, देखो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले में, तो ये वाला हमारा कौन सा क्वाड्रेंट था, याद है किसी को? हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बी जो पॉइंट है दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट जी? पॉइंट जी अभी हमने इसके जस्ट ऊपर थर्ड पार्ट में भी एक्सप्लेन किया, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो we are given with some points on the coordinate plane xy plane and we explained the position of these points according to abscissa and ordinate। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास पिटारे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे एक क्लाउन दिया हुआ है। ओके, तो जो ये क्लाउन है ये आपका 2D प्लेन के अंदर इमेज दी है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स सो दैट दे मेक अ रेक्टेंगल। अभी देखो यहाँ पे आपको कैसे काम करना होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं। आई मीन टू से देयर इज नॉट अ यूनिक आंसर, देयर कैन बी मोर देन वन आंसर। मुझे 4 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ए बी सी डी जो आपको पॉइंट्स मेंशन किए हुए ना फिगर के अंदर, उनको देखते हुए 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं सो दैट इट विल मेक अ रेक्टेंगल। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूँ और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, 4 पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए मैंने। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो हमारा जो आंसर होगा एच सी डी एंड जी, ये चारों पॉइंट्स जब मैं ज्वाइन करूंगी आई विल गेट अ रेक्टेंगल विद नेम एच सी डी जी। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब ध्यान रखना इसी क्वेश्चन में और एक पेयर इस तरह का दिया हुआ है, जिन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन अगर आप करते हैं यू विल गेट वन मोर रेक्टेंगल। सो दिस इज योर होमवर्क, यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर द सॉल्यूशन विद मी टू चेक। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हर पार्ट में एक एक खुद करना होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज 2 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस। तो अब आपकी एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली। एक्स एक्सिस में इसने बोला 2 यूनिट अबव, अबव का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका 1 2 यूनिट अबव। तो 2 यूनिट अबव अभी क्योंकि हमने रेक्टेंगल भी बनाई थी तब भी हमने उन पॉइंट्स को यूज किया है, देख पा रहे हो। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है, इससे 2 यूनिट ऊपर मुझे जाना है, 1 2, सिमिलरली 1 2। आंसर मैं आपको एक ही दूंगी, माई आंसर इज पॉइंट एच। एच जो पॉइंट है वो मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आई एम जस्ट राइटिंग इट्स कोऑर्डिनेट एज वेल, दिस इज -3 एंड 2। सो दिस इज 2 यूनिट अबव एक्स एक्सिस। क्लियर है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमें कौन देता है, ऑर्डिनेट। एक और आंसर है दैट इज फॉर यू। थर्ड पार्ट, coordinates of the mirror image of J in y axis as mirror। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, ये वाला हमारा क्लास 8 में ना लाइट चैप्टर जो है उसमें भी एक टॉपिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा हमारा। तो ये हमारी ना एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट J है उसके कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 5। तो यहाँ से हम इसको पॉइंट को ना प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा आंसर निकालना। मुझे एक्स एक्सिस पे -2 तक जाना है जे के लिए, तो 1 एंड 2, दिस इज -1 दिस इज -2। और वाई एक्सिस पे मुझे जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5। अब -2 और 5 का आप यहाँ पे बना दो क्रॉस सेक्शन, -2 और 5 का हमने बना दिया क्रॉस सेक्शन दिस पॉइंट, तो दिस इज माय पॉइंट जे। इसने बोला वाई एक्सिस को मिरर की तरह बिहेव करो, तो ये मेरा क्या हो गया, मिरर। ये वाली जो वाई एक्सिस है ना यहाँ से, दिस विल बिहेव एज मिरर। अब जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वही कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। वाई एक्सिस अगर मिरर होगा, जे की जो इमेज बनेगी वो किस एक्सिस में बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। एंड मेरा जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे मेरे कौन से पॉइंट आ जाएंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2। और 2 पे यहाँ पे तो आपका हाइट तो सेम ही रहेगा ना, दिस वन। सो दिस इज 2 5।
इसने क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ जे इन वाई एक्सिस एज मिरर। तो ये जो आपका -2, 5 जो पॉइंट आ रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसकी मिरर इमेज जो बनेगी दिस विल बी 2,5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थर्ड पार्ट का मेरा आंसर हो जाएगा 2, 5 मिरर इमेज ऑफ जे, 2, 5 मिरर इमेज ऑफ जे। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 2 और 5 पे मेरा कौन सा पॉइंट है, ए, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। कोऑर्डिनेट है 2, 5 और पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। अब इसके लिए एक मैं आपको एज अ क्विज देती हूँ, आपको इसी सेम क्लाउन फिगर के अंदर जो पॉइंट जी दिखाई दे रहा है ना, जी, मैं यहाँ पे आपका आंसर लिखकर, क्वेश्चन लिखकर छोड़ रही हूँ। ये जो आपका पॉइंट जी है ना, उसके लिए आपको मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा पॉइंट मिरर इमेज होगा जी का इन मिरर एज वाई एक्सिस, इन मिरर एज वाई एक्सिस। देखते हैं कौन कौन बच्चा ध्यान से वीडियो को सुन रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाला है। दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू कैन आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स, दे विल एंजॉय। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा पहुंच गया है। अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारा पढ़ाई हो गया है, अभी कुछ खाना पीना करें। ये बोल रहा है हमें ना एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के अंदर देखो इसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काफ़ी सारी यम्मी यम्मी खाने की चीज़ें भी दी हैं। अब हमें क्या करना है, इन खाने की चीज़ों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो बच्चा कोऑर्डिनेट बताता जाएगा वो उस चीज़ को खाता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इसने बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोनट, ढूंढो। जिसको डोनट खाना है वो बच्चा ढूंढो, हियर इज द डोनट। डोनट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो पहले हमें क्या लिखना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सीसा। तो यहाँ से अगर मैं देखो ऐसे 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 करके जा रही हूँ तो मेरे को यहाँ से 10 यूनिट्स और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 9 यूनिट। तो डोनट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, डोनट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10, 9। अभी आपको क्या देखना है, सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल द पॉइंट्स आर पॉजिटिव। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट द साइन इन दिस क्वेश्चन, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द पोजीशन, लोकेशन। फ्रेंच फ्राइज, कौन बच्चा फ्रेंच फ्राइज खाने में इंटरेस्टेड है? अरे अरे अरे, पहुंचो। मुझे लग रहा है शायद आदित्य बच्चा पहुंच गया है फ्रेंच फ्राइज तक। ठीक है जी। अब फ्रेंच फ्राइज मुझे लग रहा है ये शायद पॉपकॉर्न तो नहीं है, पॉपकॉर्न का फील दे रहा है। फ्रेंच फ्राइज कहाँ पे है हमारे, इधर। हाँ जी, फ्रेंच फ्राइज रेड बॉक्स के अंदर है हमारे पास। 2000 पॉपकॉर्न नीचे गिरे हुए ना, तो समझ जाना। तो फ्रेंच फ्राइज के लिए मैं एफ रख लेती हूँ। एफ फ्रेंच फ्राइज कौन सी लोकेशन पे है, अगर आपने लोकेशन बताई तभी आपको फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलेगा, नहीं तो वैसे भी नहीं मिलना। तो फ्रेंच फ्राइज जो है वो आपका, अगर हम यहाँ से ज्वाइन करके देखेंगे, वैसे तो अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, ज्वाइन भी नहीं करके देखोगे तो भी आपको पता चल रहा है, बिकॉज दिस इज दी ग्राफ पेपर। तो एक्स एक्सिस एब्सीसा इज 1 एंड ऑर्डिनेट इज, देखो बिल्कुल पास है 8, तो 1,8, 1,8। कोई भी बच्चे गलती नहीं करेगा, इस चैप्टर से आसान चैप्टर कोई नहीं है मेरे पास 9th में, कहीं फिर बोलो। आइसक्रीम, वाओ, सारे के सारे जंक फूड एक दिन में मत खाना, एक एक करके खा लेना। एक दिन में ज़्यादा जंक फूड खाए तो मम्मा भी गुस्सा करने वाली है मुझे ना। आइसक्रीम कहाँ गई हमारी आइसक्रीम, ये तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम फील हो रही है वैसे भी। हाँ जी, दिस इज आवर चॉकलेट आइसक्रीम। कौन बच्चा लोकेट करेगा? I think Riddhima is coming to show me the answer. She is saying here is the ice cream. So x coordinate 6 units, y coordinate देखो cross section 3. So it is at position 6,3. Yes Riddhima, you can have the ice cream. Next, the last part, अभी जिस बच्चे को खाना है जल्दी से आ जाओ, जंक फूड हमारे खत्म होने वाले हैं। तो इट इज सेइंग राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 जंक फूड। जंक है तो जंक बोलना पड़ेगा, जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो थोड़ा कम खाना चाहिए। सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 जंक फूड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो फ्रेंच फ्राइज के साथ कोई नहीं है, पेस्ट्री के साथ भी कोई नहीं है, नहीं, मफिन के साथ भी कोई नहीं पेयर बना रहा है। मुझे तो मिल गया। अरे अरे अरे, मेरे साथ साथ लगता है बहुत सारे बच्चों ने आइडेंटिफाई किया। यस, 3 लेयर
cake, then cheesecake and the pizza. These three are making a straight line. 3 points on a straight line. तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? केक. केक को 3 लेयर केक है ना हमारे पास, तो ब्राउनी केक हम इसको लिख देते हैं बी. ब्राउनी केक. ब्राउनी केक 3 सेम लाइन में है ना, तो ब्राउनी केक के कोऑर्डिनेट है मेरे x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 6, 3,6. उसके बाद है हमारे पास चीज केक. चीज केक के कोऑर्डिनेट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आपका देखो यहां से यहां तक 7 एंड यहां 6, 7,6. चीज केक के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं जी? 7,6. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? वाओ, पिज्जा. पिज्जा 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 के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो अब थोड़ा सा. 9,6. कैसा लगा पिज्जा? पिज्जा हर बच्चे को अच्छा लगता है ना. अब अगर मैं ये तीनों पॉइंट ध्यान से देखूं, ब्राउनी केक, चीज केक एंड पिज्जा, इन तीनों के ऑर्डिनेट देखो 6, 6, 6 सेम आ रहे हैं. सो बेसिकली दीज आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि इनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सेम आ रहा है. तो मेरा लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ब्राउनी केक एट 3, 6, चीज केक एट 7, 6 एंड पिज्जा एट 9, 6. डन. आई थिंक हम लोगों ने पेट भर के खा भी लिया और अभी तक क्वेश्चन भी सॉल्व करके हो गया हमारा. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या मजेदार चीज आ रही है, देखिए. ये बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 5,8 फ्रॉम y एक्सिस इज. अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. मेरी जितनी गंदी गंदी एक्सिस मत बनाना, ठीक है. मेरे पास इस टाइम स्टाइलस और जो पेन अवेलेबल है उससे मैं इतना ही सुंदर बना पा रही हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर मेरे से हो नहीं पा रहा है. तो क्या हो रहा है इसके अंदर हमारे पास, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 5,8 फ्रॉम y एक्सिस. तो 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे प्रेफरेबली आप क्या करोगे, एरोज लगाओगे बिकॉज दीज कैन एक्सटेंड. तो 5,8 का यहाँ पे एक लोकेशन बन गया P पॉइंट का, ठीक है. अब ये बोल रहे व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. तो देखो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये मेरा क्या है 5 यूनिट. तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स. तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एब्सिसा. अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ये बोल रहे द पॉइंट विद एब्सिसा -3 एंड ऑर्डिनेट -5 लाई इन विच क्वाड्रेंट. अभी एब्सिसा -3, तो -3 कहाँ पे होएगा, 1, 2, 3, ये है ना -3 आपका, और ऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3, 4, 5, -5. -3 और -5 का क्रॉस सेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे. और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, याद है? ठीक बोल रहे हो भैया, घबराओ मत. थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है नेम द क्वाड्रेंट इन विच द ग्राफ ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई लाइज व्हेन x मोर देन 0. चलो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. इसने बोला x मोर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एब्सिसा पॉजिटिव. एब्सिसा पॉजिटिव, ठीक है. फिर इसने क्या बोला, y लेस देन 0. y लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव. अब एब्सिसा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑर्डिनेट नेगेटिव. एब्सिसा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑर्डिनेट नेगेटिव. देखो दोनों का क्रॉस सेक्शन हमें कौन से क्वाड्रेंट में ला दे रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपका थर्ड पार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर. तो दिस क्वेश्चन वाज मेनली बेस्ड ऑन, बताओ किस पर बेस्ड था, किस पर बेस्ड था, पोजीशन. पोजीशन. चलिए जी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हम लोगों को 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 2D प्लेन के अंदर, और उन चारों पॉइंट्स को फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन, और फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ रहा है. याद है ना, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, और 4 वर्टिसेस होने के साथ साथ और क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, और क्या होता है जी, 4 एंगल्स भी तो होते हैं ना.
कौन सी एक्सिस है? वेरी गुड, वाई एक्सिस। अब कौन सी एक्सिस बनानी है? एक्स एक्सिस। दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या होता था? ओरिजिन 0 0। सारा कुछ आप बता दोगे, मेरे लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो आप। मुझे क्या बनाना है? 1, 2। तो एक्स एक्सिस पे 1 ले लो, वाई एक्सिस पे 2 ले लो, और इन दोनों का क्रॉस सेक्शन 1, 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा ए। कोशिश करो जहां आप पॉइंट्स लिखते हो पूरा उसके विद कोऑर्डिनेट्स लिखो, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आती है आप लिख क्या रहे हो। अब क्या करना है? बी पॉइंट प्लॉट करेंगे। बी पॉइंट के लिए हम क्या लेंगे? 4 विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो 1, 2, 3 एंड 4। -1, -2, -3, -4। नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, टूवर्ड्स आर लेफ्ट, तो -4 वहां पे पहुंच जाओ। अब साथ में इसने बी पॉइंट के लिए क्या बोला है? -4 पे 2, -4 पे 2। तो देखो यहाँ पे हम बी पॉइंट बना देते हैं, -4 एंड 2। अब क्या बोल रहा है? -4 एंड 1। ओके, -4 एंड 1, इसके जस्ट नीचे मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा सी। सी के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 1। चलिए जी, हो गया ये भी। लास्ट डी पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। डी के लिए इसने प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट दिए हैं 1 एंड 1। अब इसने बोला इन चारों को ज्वाइन करके ना देखो कौन से टाइप की ट्राइंगल, सॉरी कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन रही है। चलो जी स्टार्ट करो ज्वाइन करना। ए बी को ज्वाइन कर दो, कर दिया। बी सी को ज्वाइन कर दो, कर दिया। सी डी को ज्वाइन कर दो, इसको भी कर देते हैं जब बोल रहे हैं तो। और अब ए डी को भी ज्वाइन करने को बोल रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर दो। वेरी गुड जी, बड़ी सुंदर सी ट्राइंगल क्या हो गया मुझे? बड़ी सुंदर सी क्या बन गई है? रेक्टेंगल। तो इसने पूछा विच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, तो मेरा आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अभी इसने पूछा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हर चीज मैं तो नहीं बताऊंगी ना। ओके, आप बोल रहे हैं L इंटू बी। L इंटू बी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो फिर? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अभी टीचर तो हमें बताएगी नहीं ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लॉट करके चेक करते हैं। ये देखो ये देखो, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ क्या आ रही है? ये चीज़, दिस इज लेंथ। एंड ब्रेथ के लिए आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, ए डी भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर बी सी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ए से डी तक का डिस्टेंस -4 यूनिट इधर था और 1 यूनिट इधर था, तो टोटल मेरे पास हो जाएंगे 5 यूनिट। लेंथ मेरी हो जाएगी 5 यूनिट। एंड ब्रेथ, ये देखो ये 2 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट था। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी, हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 5 into 1, 5 square units, 5 square units. This is the answer of the last question. Done. अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए और प्रैक्टिस करने का मन है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. वी विल शेयर मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक. Please don't hesitate and always remember मैथ्स इज ओनली अबाउट द प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. मतलब डेली आपको 1.5 आवर मैथ्स प्रैक्टिस करनी है. जो बच्चे डेली 1 आवर 1.5 आवर प्रैक्टिस करते हैं दे कांट लैक. बट प्रैक्टिस का मतलब होता है डेडिकेशन. ऐसा नहीं है आप साथ साथ लिखे जा रहे हो, आपका टीवी चल रहा है, आप यहाँ पे मोबाइल पे खेल रहे हो, साथ में आप कुछ होमवर्क करे जा रहे हो. नो, दिस शुड बी डेडिकेटेड स्टडी. चलो जी, बहुत हो गया आज के लिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं. थैंक यू. अगर आप चाहते हो तो यू कैन शेयर द टॉपिक और द चैप्टर ऑन विच यू वांट माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट बच्चा. थैंक यू.